Hello everyone, I am Adrika Pathak and I am going to take up the Cowardly Lion of Class 6 syllabus. Let's begin with the simple summary of the excerpt from The Wonderful Wizard of Oz. Dorothy, Toto, the Scarecrow, and the Tin Woodman are walking through a dark and spooky forest on their way to the Emerald City to meet the Wizard of Oz. The road is covered in yellow bricks, but it's full of dried leaves and branches, making it unpleasant to walk on. The forest is so thick and shadowy that there aren't many birds, and scary animal sounds make Dorothy nervous. When Dorothy asks the Tin Woodman how long it will take to get out of the forest, he admits he doesn't know. Just then, a fierce lion jumps out, scaring everyone. He knocks the Scarecrow down and attacks the Tin Woodman, but the Tin Woodman doesn't get hurt. Toto bravely barks at the lion, but the lion tries to bite him. Dorothy, angry and protective, slaps the lion on the nose and scolds him. To her surprise, the lion admits he's actually a coward. The Cowardly Lion explains that he has always felt ashamed of being scared, even though all other animals are afraid of his loud roar. Dorothy and her friends tell him that they're going to ask the Wizard of Oz for things they need. The Scarecrow wants brain, the Tin Woodman wants a heart, and Dorothy wants to go back home to Kansas. The lion decides to join them to ask for courage. As they continue their journey, the Tin Woodman accidentally steps on a beetle and feels terrible because he never tries to hurt any living creature. His sadness makes him cry and his tears rust his jaw shut. The Scarecrow quickly oils him so he can speak again. The Tin Woodman then carefully watches where he steps, showing how gentle he is, even though he has no heart. This scene highlights the importance of courage, compassion, and the idea that even without a heart or brain, one can still care and act wisely. So now, let's begin with the chapter by line explanation in Hindi. This is an excerpt from The Wonderful Wizard of Oz. So ये एक extract, छोटा सा extract है Wonderful Wizard of Oz में से. One day, a tornado carries Dorothy and her dog Toto from their farm to the magical land of Oz. एक दिन एक तूफान आता है और डॉर्थी और उसके डॉग टोटो को अपने फार्म से एक मैजिकल लैंड ऑफ ऑज की तरफ ले जाता है. The good witch tell her that the wizard of Oz can help her get home. जो good witches होती हैं यहाँ पे वो बताती हैं डॉर्थी को कि जो wizard of Oz है वो उसको घर पहुँचाने में help कर सकता है. On her journey to the Emerald City. Emerald City, Emerald एक green precious stone होता है और Emerald City में हर चीज़ हमें green appear होती है. Where the wizard lives, Dorothy makes friends with a scarecrow. तो scarecrow वो होता है जो एक फील्ड में खड़ा होता है और वो क्रोस को भगाता है फील्ड खराब करने से. And a tin woodman. Tin woodman एक आदमी जो टिन से बना हुआ है. Let's read about the adventure they have along the way. All this time, Dorothy and her companions had been walking through the thick woods. इस पूरे समय डॉर्थी और उसके साथी, companions means साथी, thick woods walk कर रहे होते हैं. thick woods का मतलब होता है forest. तो इस पूरे टाइम डॉर्थी अपने साथियों के साथ ही उसके टिन वुडमैन, स्केरक्रो और टोटो, उसका डॉग टोटो है, तो वो फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे होते हैं. The road was still paved with yellow bricks. जो रोड थी वो कवर्ड थी येलो ब्रिक्स से. The bricks were covered with dried branches and dead leaves from the trees. जो trees से झड़ जाती है dried leaves और dried branches वो रोड पे covered थी. The walk was not enjoyable at all. जो walk थी वो बहुत boring थी. There were a few birds in this part of the forest because there was very little sunshine. तो ये बहुत घना जंगल था तो बहुत थोड़ी सनशाइन आ रही थी तो बर्ड्स बहुत थोड़ी थी उस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में. ओकेजनली मतलब कभी कभार they heard a deep growl from some wild animal hidden among the trees. कभी कभार उनको एक deep growl आ रही थी animals की, बट वो उसको दिख तो रहे नहीं थे क्योंकि वो पेड़ के पीछे छुपे थे. ग्राउल मतलब आवाज़ें.
These sounds made the little girl's heart beat faster, for she did not know what made them. अब डॉर्थी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये आवाज़ें कौन निकाल रहा है. So she was very scared. Toto knew and he walked close to Dorothy's side and did not even bark in return. अब टोटो तो डॉग था तो उसको तो पता था कि कौन आवाज़ें निकाल रहा है, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो वो बार्क नहीं करता रिटर्न में और डॉर्थी के साइड में चलने लगता है. How long will it be? Dorothy asked the Tin Woodman before we are out of the forest. कितनी देर लगेगी भाई जब तक हम लोग इस फॉरेस्ट से बाहर होंगे? उसने टिन वुडमैन से पूछा. I don't know, he replied, for I have never been to the Emerald City. मुझे नहीं पता, मैं तो कभी एमरल्ड सिटी गया ही नहीं हूँ. My father went there once when I was a boy. Boy means young. मेरे पापा गए थे एक बार जब मैं बहुत छोटा था. He said it is a long journey through a dangerous city. उन्होंने बोला था ये एक long journey है through a dangerous city, एक dangerous city से through है. The country where the wizard dwells is beautiful, though just a little scary. Wizard means जादूगर. वो country जहाँ पे wizard रहता है वो beautiful है but हल्की सी scary है. But I am not afraid as long as I have my oil can and nothing can hurt the scarecrow. मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं टिन का बना हूँ और टिन को मूव फ्रीली होने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है और मेरे पास तो वो है और स्केक्रो को कोई हर्ट नहीं कर सकता. The good witch kissed you for protection. It will protect you from harm as long as you bear its mark upon your forehead. और गुड विच ने तुम्हें किस किया है, जब तक उसकी किस का मार्क तुम्हारी फोरहेड पे है तब तक तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता. बट टोटो said the girl anxiously, what will protect him? लेकिन टोटो said the girl anxiously. Anxiously means worriedly. वो worried वे में कहती है. बट टोटो what will protect him? उसको क्या प्रोटेक्ट करेगा? We must protect him ourselves if he is in danger, replied the Tin Woodman. अरे उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे जब वो डेंजर में होगा. Just as he spoke, they heard a terrible roar, and the next moment, a big lion bounded onto the road. जैसे ये कन्वर्सेशन चल रही थी, उनको एक दहाड़ने की साउंड सुनाई देती है, और अगले ही पल एक बड़ा सा लायन लैंड होता है वहाँ पे. With one hit of his paw, he sent the scarecrow spinning over and over to the edge of the road. वो एक पंजा मारता है, जो स्केक्रो था वो स्पिन होते 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 edge of the road पे चला जाता है. He then struck the Tin Woodman with his sharp claws. फिर वो एक पंजा मारता है अपने sharp claws से Tin Woodman पे. But to the lion's surprise, he could make no impression. मतलब जब लायन शॉक हो जाता है कि कोई इम्प्रेशन बनाई नहीं, उसको चोट तो लगी ही नहीं, तो वो शॉक हो जाता है. Although the woodman fell down on the road and lay still. वो अलग बात है, जो Tin Woodman था वो गिर जाता है, वहाँ पे पड़ा रहता है, बट उसको कोई चोट नहीं लगती है. Little Toto, now that he had an enemy to face, ran barking towards the lion. अब टोटो को एक एनिमी मिल चुका था, तो अब वो बार्क करते हुए लायन के टुवर्ड्स जाता है. The great beast had opened his mouth to bite the dog. Beast मतलब एनिमल एंड ग्रेट बीस्ट मतलब बड़ा एनिमल. तो बड़ा एनिमल यहाँ पे लायन को बुला गया है, तो लायन अपना मुंह खोलता है टोटो को बाइट करने के लिए. But Dorothy rushed forward and slapped the lion upon his nose as hard as she could. जैसे मम्मी जब हम लोग कोई शैतानी करते हैं तो मारती है ना, वैसे. तो डॉर्थी जाती है, लायन को स्लैप करती है upon his nose as hard as she could. जितनी तेज वो मार सकती थी उतनी तेज उसने मारा. उसने चिल्लाया, Don't you dare bite Toto! You ought to be ashamed of yourself. A big beast like you biting a poor little dog. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. उसने बोला तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े जानवर हो के इतने छोटे से डॉग को काट रहे हो. I didn't bite him, whined the lion as he rubbed his nose with his paw where Dorothy had hit it. मैंने काटा नहीं उसको. लायन रोते हुए, whine means रोते हुए फॉर्म में कहता है, और वो अपनी नोज को रब कर रहा होता है जहाँ पे डॉर्थी ने मारा था. No, but you tried to, she retorted. You are nothing but a big coward. लेकिन तुमने ट्राई किया था. She retorted. Retorted means said angrily. उसने बोला लेकिन तुमने ट्राई किया था ना उसको काटने का. You are nothing but a big coward. तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ एक बड़े डरपोक हो, कायर हो तुम. I know it, said the lion hanging his head in shame. मुझे पता है, उसने बोला shame में हैंग करते हुए लेट. मुझे पता है. I've always known it. मुझे हमेशा से पता है मैं एक बहुत बड़ा कायर हूँ. बट हाउ कैन आई हेल्प इट? मैं कैसे सही करूँ उसको? आई डोंट नो. आई एम श्योर
to think of you hitting a stuffed man like a poor scarecrow. मुझे नहीं पता कैसे सही करो, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम बहुत बड़े कावर्ड हो, क्योंकि तुमने एक स्टफ्ड मैन को मारा, वो तो एक पूरा स्केक्रो को मारा, वो तो एक ढंग का इंसान भी नहीं है, तुमने उसको मारा. Is he stuffed? asked the lion in surprise. अच्छा, ये stuffed है क्या, इंसान नहीं है? He watched her pick up the scarecrow and help him to stand. वो देखता है कि डॉर्थी उसको उठा रही है, स्केक्रो को स्टैंड करने में हेल्प कर रही है. While she patted him to shape again. वो उसको ऐसे ऐसे करके झाड़ झूठ के उसको शेप में वापस लाने की कोशिश कर रही है. Of course he is stuffed, replied Dorothy. She was still angry. Of course वो stuffed है, डॉर्थी ने रिप्लाई किया. वो अभी भी एंग्री थी. That's why he fell down so easily, remarked the lion. अच्छा, इसीलिए इतनी इजीली गिर गया, लायन ने बोला. It astonished me to see him whirl around so. अच्छा, तभी मुझे वियर्ड लग रहा था जब वो ऐसे ऐसे नाच नाच के गिर गया. Is the other one stuffed too? अच्छा, मतलब जो टिन वुडमैन है, वो जो अदर बंदा है, वो भी स्टफ्ड है. No, said Dorothy. He is made of tin. She helped the Tin Woodman up. अरे नहीं, वो टिन का बना है. फिर उसने ये कह के टिन वुडमैन को ऊपर खड़ा किया. That is why he nearly blunted my claws. अच्छा, इसीलिए मेरे क्लॉज ब्लंट हो गए. ब्लंट मतलब कि घिस गए. What is that little animal you are so tender with? लायन ने पूछा. वो छोटा सा एनिमल कौन है जिससे तुम इतना फॉन्ड ऑफ हो, जिसकी वजह से तुमने मुझे थप्पड़ मारा? He is my dog, Toto, answered Dorothy. अरे नहीं, ये मेरा डॉग है, टोटो. Is he made of tin or he is stuffed? asked the lion. अच्छा, तो ये टिन का बना है या ये भी स्टफ्ड है? Neither. He is a real live dog, said the girl. कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, वो एक रियल लिविंग डॉग है. Oh, he is a strange animal and seems very small now that I look at him. अच्छा, ये स्ट्रेंज एनिमल है, बहुत छोटा लग रहा है. अब जब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ तो ये बहुत छोटा लग रहा है. No one would think of biting such a little thing except a coward like me, continued the lion sadly. कोई इसको बाइट करने का नहीं सोचेगा, except a big coward like me, मेरे जैसे कायर के अलावा. What makes you a coward? asked Dorothy, looking at the lion who was big as a small horse. जब उस डॉर्थी ने लायन को अच्छे से देखा तो वो लंबा तगड़ा था, एक स्मॉल हॉर्स की तरह. तो वो पूछ लेती है, तुम्हें कायर क्या बनाता है? It's a mystery, replied the lion. एक रहस्य है. I suppose I was born that way. मुझे लगता है मैं born ही कायर हुआ हूँ. All the other animals in the forest expect me to be brave, for the lion is thought to be the king of beasts everywhere. सारे अदर एनिमल्स जंगल में मुझे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, क्योंकि लायन किंग ऑफ बीस्ट्स माना जाता है, किंग ऑफ एनिमल्स माना जाता है हर जगह. I learned that if I roared very loudly, every animal would get frightened and move out of my way. धीरे धीरे मैंने यही सीखा कि अगर मैं बहुत तेज से दहाड़ूंगा तो सारे एनिमल्स डर जाएंगे और मेरे रास्ते से अपने आप हट जाएंगे. If elephants and tigers and the bears had ever tried to fight with me, I should have run away myself. लेकिन एक सच बात बताऊं, अगर एलिफेंट्स, टाइगर्स, बेयर्स कभी सच में मुझसे लड़ने आ जाएंगे ना, मैं डर के मारे खुद ही भाग जाऊंगी. मैं इतना बड़ा कायर हूँ. But as soon as they hear me roar, they all run away and of course I am glad to see them go. जैसे ही मैं रोर करता हूँ वो सब खुद ही भाग जाते हैं और मैं खुश हो जाता हूँ उनको भागते देखते. But that isn't right. King of beasts shouldn't be a coward, said the scarecrow. But ये तो सही नहीं है. King of beasts, king of animals. एक coward नहीं होना चाहिए, scarecrow कहता है. I know it, said the lion in return, whipping a tear from his eye with the tip of his tail. मुझे पता है, वो रोते हुए कहता है, अपनी टेल की टिप से अपने आंसू पूछता है. It is my great sorrow and makes my life a very unhappy one. ये मेरा great sorrow है और मेरी लाइफ को बहुत दुखी बनाता है. But whenever there is danger, my heart begins to beat fast. But जब भी डेंजर होता है मेरा हार्ट कस कस के धड़कने लगता है. The Tin Woodman said, "You ought to be glad, for it proves you have a heart." I have no heart, so it cannot beat, he finished sadly. अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ये प्रूफ तो करते हैं तुम्हारे पास हार्ट है. मेरे पास तो हार्ट ही नहीं है, तो वो धड़क ही नहीं सकता. वो सैडली फिनिश करता है. Perhaps, said the lion thoughtfully, if I had no heart, I would not be a coward. Maybe, लायन कहता है थॉटफुली. अरे यार, लेकिन तुम लकी हो, तुम्हारे पास हार्ट नहीं है. अगर मेरे पास भी हार्ट नहीं होता ना तो मैं इतना बड़ा कावर्ड नहीं होता. Have you no brains either? asked the scarecrow. तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है क्या?
I don't suppose I do. I've never looked to see, replied the lion. मुझे नहीं लगता मेरे पास है, मैंने कभी देखा नहीं, replied the lion. I'm going to the great ox to ask him to give me some brains, remarked the scarecrow, because my head is stuffed with straw. मैं तो ग्रेट ऑस के पास जा रहा हूँ ब्रेन्स मांगने, क्योंकि मेरा हेड में भूसा भरा है. आई एम गोइंग टू आस्क हिम टू गिव मी अ हार्ट, सेड द टिन वुडमैन. मैं तो ग्रेट ऑस से दिल मांगने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क हिम टू सेंड टोटो एंड मी बैक होम, एडेड डॉर्थी. डॉर्थी कहती है मैं टोटो और अपने आप को घर भिजवाने की विश मांगूंगी ग्रेट ऑस से. तो तीनों लोग किसी ना किसी चीज़ को मांगने के लिए ग्रेट ऑस के पास जा रहे थे. डॉर्थी घर वापस जाने के लिए मांग रही थी, और टिन वुडमैन जा रहा था हार्ट मांगने, और स्कैरेक्रो जा रहा था ब्रेन मांगने. डू यू थिंक ऑस कुड गिव मी करेज, आस्क्ड द कावर्डली लायन. क्या तुम्हें लगता है ऑस मुझे करेज दे सकता है, कावर्डली लायन बोलते हैं इनकी बात सुनने के बाद. करेज का मतलब स्ट्रेंथ, ताकत. जस्ट एज इजीली एज ही कुड गिव मी ब्रेन्स, सेड द स्कैरेक्रो. उतनी आसानी से दे सकता है जितनी इजीली मुझे ब्रेन्स दे सकता है. और गिव मी अ हार्ट, सेड द टिन वुडमैन. और उतनी आसानी से तुम्हें करेज दे सकता है जितनी आसानी से मुझे हार्ट दे सकता है. और सेंड मी बैक होम, सेड डॉर्थी. और उतनी आसानी से जितनी आसानी से वो मुझे घर वापस भेज सकता है. Then, if you don't mind, I'll go with you, said the lion, for my life is simply unbearable without a bit of courage. फिर प्लीज़ अगर तुम माइंड ना करो मैं तुम्हारे साथ करेज मांगने चल सकता हूँ ऑस के साथ, क्योंकि मेरी लाइफ अनबेरेबल है, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं सह सकता विदाउट अ बिट ऑफ करेज. यू आर वेलकम, आई एम श्योर, आंसर्ड डॉर्थी, फॉर यू विल हेल्प टू कीप अवे द अदर वाइल्ड बीस्ट्स. बीस्ट मतलब एनिमल. तो वो कहती है यू आर वेलकम, तुम वेलकम दो. आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है, आंसर डॉर्थी, क्योंकि तुम हेल्प करोगे अदर वाइल्ड एनिमल्स को हमसे दूर रखने में. वो हमें कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि तुम हमारे साथ रहोगे. इट सीम्स टू मी दे मस्ट बी मोर कावर्डली दैन यू आर, सिंस दे लेट यू स्केयर देम सो ईजिली. बट एक सच बात बताऊँ, मुझे लगता है वो जो एनिमल्स है वो तुमसे भी ज़्यादा कावर्ड होंगे, क्योंकि तुम इतने बड़े कावर्ड हो, वो तुमसे भी डर जाते हैं. डॉर्थी ने हट किया. They really are, said the lion, but that doesn't make me any braver. वो सच में है, वो they really are मतलब एनिमल सच में कावर्ड है, वो सच में बहुत कावर्ड है, लेकिन उससे मैं ब्रेवर नहीं बनूंगा. As long as I know myself to be a coward, I shall be unhappy. जब तक मुझे पता है मैं एक कावर्ड हूँ, मैं एक कायर हूँ, मैं खुश नहीं रह सकता. So once again the little group set off upon the journey. फिर से वो अपनी जर्नी पे निकल पड़ते हैं जो लिटिल ग्रुप था. अब इस लिटिल ग्रुप में कौन कौन था? डॉर्थी, कावर्डली लायन, टिन वुडमैन, स्कैरेक्रो और उसका डॉग टोटो. The lion walked close to Dorothy's side. वो लायन जो था डॉर्थी के बहुत क्लोज में चल रहा था. Toto did not like the lion at first, for he could not forget how the lion had tried to bite him. टोटो को लायन बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि वो टोटो नहीं भूल पा रहा था कि लायन ने शुरुआत में उसको काटने की कोशिश की थी. But after some time, Toto and the cowardly lion grew to be good friends. थोड़ी देर बाद टोटो और कावर्डली लायन अच्छे दोस्त बन जाते हैं. During the rest of that day, there was no other adventure to mar the peace of their journey. Mar means destroy. फिर कोई ऐसा एडवेंचर नहीं आया जो उनकी जर्नी को डिस्ट्रॉय कर सके. Once the Tin Woodman stepped upon a beetle that was crawling upon the road and killed the poor little thing. एक बार जो टिन वुडमैन था उसने एक बीटल पे जो क्रॉल कर रहा था रोड पे उस पर स्टेप कर दिया और उस छोटी सी चीज़ को मार डाला. Beetle is an insect. This made the Tin Woodman very unhappy, for he was always careful not to hurt any living creature. इस इंसिडेंट से टिन वुडमैन को बहुत ठेस पहुंची. वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था क्योंकि वो हमेशा केयरफुल था कि वो किसी भी लिविंग क्रिएचर को ना हर्ट करे. As they walked along, he kept crying. वो चलता तो रहा लेकिन वो रोता रहा. The tears ran down his face slowly and over the hinges of his jaw, and there they rusted the hinges. So जो वो रो रहा था ना, तो वो तो टिन का बना था, तो यहाँ पे आके उसके मुंह के पास उसके टीयर्स रुक जाते हैं और वो रस्ट कर जाते हैं. हिंजेस का मतलब कॉर्नर्स होता है, तो उसके मुंह के कॉर्नर्स पे जंग लग जाती है. रस्ट मीन्स जंग लग जाना. When Dorothy asked him a question, he could not open his mouth, for his jaws were tightly clenched together because of the rust. जब डॉर्थी ने उसे एक क्वेश्चन पूछा, वो अपना मुंह ही नहीं खोल पा रहा था क्योंकि बिकॉज ऑफ द रस्ट, जंग लग जाने की वजह से वो टाइटली क्लेंच्ड हो गए थे, मतलब बहुत अकड़ गए थे. He became frightened and made many signs to Dorothy to help him, but she could not understand. वो बहुत डर जाते क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, तो वो बहुत सारे सिग्नल्स करते डॉर्थी को कि वो समझ जाए कि उसके जॉज रस्ट कर चुके हैं, बट वो नहीं समझ पा रही थी उसके सिग्नल्स को.
The lion was also puzzled and did not know what was wrong. Lion भी confused था, उसको नहीं समझ में आ रहा था वो कैसे इशारे कर रहा है. But the scarecrow understood. सोचिए, एक scarecrow को समझ जाता है जिसके पास brains नहीं है. He seized the oil can from Dorothy's basket and oiled the woodman's jaw. वो समझ जाता है तो वो निकालता है ऑयल डॉर्थी की बास्केट में से और फिर वो वुडमैन के जॉस पे लगा देता है, हिंजेस पे. After a few moments, the woodman could talk as well as before. थोड़ी देर बाद वुडमैन पहले जैसे बात कर पा रहा था. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टिन वुडमैन जिसके पास हार्ट नहीं था वो कितना सिंपैथेटिक है. वो एक बीटल के मरने पे रो रहा था. और स्कैरक्रो जिसके पास ब्रेन नहीं है वो कैसे टिन वुडमैन को बचाता है. This will teach me a lesson, remarked the Tin Woodman, to look where I step. अब ये मुझे एक सीख देगा कि मैं देखूं कि कहाँ भी मैं एक एक कदम रख रहा हूँ. If I should kill another bug or beetle, I would surely cry again. अगर मुझसे एक और बग या बीटल किल होता है मैं फिर से रोऊंगा. Crying rusts my jaw and keeps me from speaking. जब मैं रोता हूँ तो मेरे जॉ रस्ट हो जाते हैं और फिर मैं बोल नहीं पाता हूँ. रस्ट मतलब जंग लग जाना. Thereafter he walked very carefully with his eyes on the road. फिर वो अपनी आंखें खोल के बहुत ध्यान से चलता है रोड पे. When he saw a tiny little ant going by, he stepped over it so as not to harm it. तो एक ant जा रही होती है एक बार तो वो उसके आगे स्टेप करता है ताकि उसको चोट ना पहुंचे. The Tin Woodman knew very well that he has no heart and therefore he took great care never to be cruel or unkind to any living creature. तो उसको पता था कि उसके पास हार्ट नहीं है तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेता था कि वो कभी भी किसी लिविंग क्रिएचर को अनकाइंड या क्रूअल ना हो उसके साथ. कितनी अजीब सी बात है ना, जिन लोगों के पास हार्ट होता है वो इतने क्रूअल होते हैं, इसके पास हार्ट नहीं है तभी इतना प्रिकॉशियस है. You people have hearts, he said, have something to guide you and need never do anything wrong. But I have no heart, so I must be very careful. टिन वुडमैन कहता है कि उसके कंपेनियंस के पास तो हार्ट है तो उन लोगों को इतना प्रिकॉशियस रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका हार्ट उनको गाइड कर सकता है कि उनको क्या सही चीज़ करनी है क्या गलत चीज़ करनी है. बट टिन वुडमैन के पास हार्ट नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस रहने की ज़रूरत है. When the Oz gives me a heart, I wouldn't need to mind so much. जब the Great Oz मुझे हार्ट दे देगा तब मुझे इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो मुझे अपने आप गाइड कर सकता है. So with this ये चैप्टर होता है ख़त्म. Do let me know in the comments कि आपको कैसा लगा मेरा explanation. And don't forget to like, share and subscribe to my mother's channel. Learn English with Priyanka.